The Bible says in Romans 14:17 that the kingdom of God is not eating and drinking, but it is righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं, लेकिन धार्मिकता, शांति और आनंद है पवित्र आत्मा में। Hallelujah. One time a preacher who had a big ministry, एक बार एक प्रचारक जिनकी बहुत बड़ी सेवकाई थी, he needed $3 million. उनको $3 मिलियन He चाहिए। was in crisis. वो एक परेशानी में थे, समस्या में थे। There was no money to pay the salaries. तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं थे। There was no money to pay the bills of the television studio. टीवी स्टूडियो के पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे। He needed the money urgently. उनको शीघ्र ही वो पैसा चाहिए था And he began to pray और वो प्रार्थना करने लगे desperately. पूरे जी जान A से, serious prayer. एक गंभीर प्रार्थना। Oh God, हे परमेश्वर, I need $3 million. मुझे $3 मिलियन If I will not get $3 million, अगर ये $30 लाख नहीं मिले I will be in a great problem. तो बहुत बड़ी समस्या में आ जाऊंगा मैं। God said, what are you doing? प्रभु ने कहा क्या कर रहे हो? He said, Lord, I am asking for $3 million. He said, प्रभु मैं $30 लाख मांग रहा हूँ आपसे। God told him, how would you act if you already had $3 million? तो परमेश्वर ने पूछा कि कैसे चलो फिरोगे अगर तुम्हारे पास पहले से ही $30 लाख होते तो? He said, Lord, I'll be very happy. उन्होंने कहा प्रभु मैं बहुत खुश होता, I will rejoice. मैं आनंद मनाता, I will give you thanks. मैं आपको धन्यवाद देता। Maybe you don't need $3 million today, शायद आपको $30 लाख ना चाहिए, but each one of you have a need. लेकिन आप में से हर किसी की जरूरत है कुछ। And I want to ask you this question. और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, How would you act कैसे चलो फिरोगे if you knew अगर आपको पता that you already had that need paid for today in Jesus' name? कि आपकी हर एक वो जरूरत पहले से ही चुका दी गई, पे कर दी गई है यीशु के नाम में? How would you act? कैसे चलते फिरते व्यवहार करते? Because guess what? पता है क्या? Majority of the church doesn't know how to receive. ज्यादातर कलीसिया को लेना नहीं आता। You receive in the spirit realm first, you have it later. पहले आप आत्मिक दुनिया में लेते हैं, फिर बाद में आपके जीवन में वो नजर आता है। Amen. And what is the sign that you have received? और क्या चिन्ह है इस बात का कि आपको मिल गया है? You know what is the sign? पता है क्या चिन्ह है? Joy. आनंद। Joy. आनंद चिन्ह। I said joy. मैंने कहा आनंद चिन्ह If है। you have not perceived joy of your answered prayer, you have not received the answer. अगर आपको अपनी प्रार्थना का आनंद नहीं मिल गया तो आपको उत्तर भी नहीं मिला है। Amen. So we are living in a time that we are surrounded by bad news, oppression, depression. क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर तरफ बुरी खबर है, तनाव है, सताव है। And the answer to that is और उसका उत्तर है joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में आनंद। Joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में आनंद। Joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में आनंद। Amen. I love what an amazing man of God, C.S. Lewis said. मुझे बहुत पसंद है C.S. लुइस जो प्रभु के अद्भुत जंत्र ने He लिखा। said, joy is the serious business of heaven. उन्होंने कहा आनंद स्वर्ग का गंभीर बिजनेस है। Come on, are you here? सुन रहे हैं यहाँ पे? He said, joy is the serious business of heaven. उसने कहा आनंद स्वर्ग का गंभीर मुद्दा है। That means whenever heaven has to do some serious business, heaven releases joy. इसका मतलब जब कभी स्वर्ग को कुछ गंभीर मुद्दा पूरा करना होता है तो स्वर्ग उसके लिए आनंद भेजता है। So many believers are not walking in victory because they are not walking in joy. इतने सारे मसीह लोग जय में इसीलिए नहीं चल रहे क्योंकि वो आनंद में नहीं चल रहे हैं। I wish you could see some faces that I'm seeing right now. काश कि आप कुछ चेहरे देख सकते जो मैं देख रहा हूँ इस समय। Joy is alien to so many Christians. कितने मसीहों के लिए आनंद एक अनजान मुद्दा है।
Because guess what? Let me tell you one thing. हमको लगता है आनंदित होना आत्मिक नहीं है. Because we think to be joyful is not spiritual. हमें लगता है आत्मिक होना है. We think to be spiritual is to have a long face. जमात खड़ी हो जाए, जमात बैठ जाए. नहीं, जमात थोड़ा हंस जाए. Let the people of God laugh. Amen. Amen. Your Father wants to fill your heart overflowing with the joy that comes from the Holy Spirit. आपका पिता आपके दिल को उस आनंद से उमड़ देना चाहता है जो पवित्र आत्मा से आता है. It's not a normal joy. ये साधारण आनंद नहीं है. It's not a joy because you got promotion. ये वो आनंद नहीं है कि आपकी तरक्की होगी नौकरी में. It's not a joy because you got a bigger business deal. बड़ी बिजनेस की डील मिल गई, ये वो आनंद नहीं है. It's not a joy because whatever, you got a visa, you went to another country. जो कुछ भी कारण हो सकता है, वीजा मिला दूसरे देश. All of that is awesome. वो सब अच्छा है. But God wants to give you a joy लेकिन परमेश्वर आपको वो आनंद देना चाहता that है does not depend upon something external, but that bubbles from inside. जो आनंद किसी बाहर की बात पर निर्भर ही नहीं करता, जो अंदर से ही उमड़ता रहता है. That means a person whose salary is 8,000 and a person whose salary is 80 lakh both can have the same joy in the Holy Ghost. इसका मतलब एक व्यक्ति जिसकी तनख्वाह 8,000 है और एक व्यक्ति जिसकी 80 लाख तनख्वाह है, दोनों पवित्र आत्मा में एक ही आनंद में जी सकते हैं. क्योंकि अगर आपका आनंद इस पे निर्भर करता है कि आपकी गाड़ी बड़ी है. Because if your joy depends on the fact that your car is bigger, जिस दिन बगल के चोपड़ा ने ले ली बड़ी गाड़ी, आपका आनंद चला जाएगा. Joy is the serious business of heaven. आनंद स्वर्ग का गंभीर मुद्दा है. कभी पवित्र आत्मा से जब लोग भर जाते हैं और वो हंस रहे होते हैं, लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, पागल हैं. When sometimes people get filled with the Holy Spirit, they start to laugh and people say, what are these? प्रभु कह रहा है मेरा सीरियस काम चल रहा है वहां पे. The Lord is saying, I'm doing some serious work there. क्या चल रहा है? What is happening? सीरियस काम चल रहा है. Serious work. एक बार प्रभु के एक दास केनेथी हेगन, One time a man of God, Kenneth Hagin, वो जब 14 साल के थे तो उनको हृदय का एक रोग था. when he was 14 years old, he had a heart disease. जिसकी वजह से वो मरने के वो बेड में थे. Because of which he was about to die. He was on a deathbed. जिसकी वजह से वो मरने के उसमें थे कगार में. He was at the verge of dying. और वो मर भी गए थे और उनकी मम्मी ने प्रार्थना करी और उनको वो वापस आ गए. And he died. His mother prayed and he came back. और उसके बाद After that, जब वो काफी सेवा कर चुके, when he had served for a वही long time, सिम्टम उनको वापस आ the same symptoms came back to him. और इतनी बुरी सिम्टम उनको लगा कि आज मैं मर जाऊंगा. And they came back so severely that he thought he's going to die. और शैतान उनके कान में बोल के हंसने लगा, आज तेरा आखिरी दिन है, आज तो मर जाएगा. And the devil kept on speaking in his ears and laughing, this is your last day, you're going to die today. और आप जानते हैं उन्होंने क्या बोला? You know what he said? वो बिस्तर में थे, उन्होंने कहा मेरे पास इतनी भी सामर्थ नहीं बच गई थी मैं कि मैं परमेश्वर के वचन की घोषणा कर सकूं. He said, I didn't even have so much ability to declare God's word. तो बेड में लेटे हुए थे. He was just lying down. तो उन्होंने ऐसे कहा, And he said, हा 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 हा. तो शैतान ने कहा ये क्या कर रहे हो? the devil asked him, what are you doing? शैतान कैसे बात करता है हमारे साथ? How does the devil speak to us? थॉट्स से. Through our thoughts. शैतान ने कहा ये क्या कर रहा है? The devil said, what are you doing? उन्होंने कहा शैतान मैं तुझ पे हंस रहा हूँ. He said, I'm laughing at you, devil. शैतान पे चिल्लाए बहुत हो आप, पर कभी हंसे हो? You have shouted at the devil so much, but have you ever laughed at him? बाइबल बताती है कुलोसियों 2:15 में कि यीशु मसीह ने उसका खुल्ला तमाशा बनाया. Colossians 2:15, the Bible tells us that Jesus made an open show of the devil. और फिर वो ऐसे करने लगे. And again he kept on laughing slowly.
तो शैतान ने उनको बोला, The devil said, तू पागल है, "You've gone crazy. क्यों हंस रहा है? Why are you laughing?" आप जानते हैं एक चीज, You know one thing? शैतान को पसंद नहीं है कोई हंसे उस पे। The devil does not like the people बड़ा laughing. ईगो वाला बंदा है वो, He has so much ego. उसके अंदर मैं बहुत है। He has too much self. सबसे पहली मैं स्वर्ग में उसी ने करी The थी। first self was from him. उसने कहा मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर He लगाऊंगा, said, "I will make my throne above the throne of God. मैं परमेश्वर के जैसे हो जाऊंगा। I will be like God." सो अगर आप शैतान पे हंसोगे ना, भाग जाएगा बहुत जल्दी, If you will laugh at the devil, he तो will इसे run पसंद नहीं है away कोई हंसे उस पे। because he doesn't like people laughing at him. फिर वो कहने लगे So he kept on doing this. बोला तू क्यों हंस रहा है? He said, "Why are you doing this?" उन्होंने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तू हारा हुआ है। He said, "I'm laughing because you are defeated. मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। फीलिंग, आनंद एक भावना नहीं है। I said joy is not a feeling. मैंने कहा आनंद कोई भावना नहीं है। Amen. Joy is a response. आनंद एक जवाब है। I said joy is a response. मैंने कहा आनंद एक जवाब है। It's a response. वो एक जवाब है। परमेश्वर आपको वो आनंद से भरना चाहता है जो उसकी आत्मा से आता है और जो ऊपर नीचे नहीं होता। But the Lord wants to fill you with a joy that comes from His Spirit and that does not go down. Amen. मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम लोग जॉय में नहीं जिएंगे तो हम मसीह जीवन को हमने जीना सीखा ही नहीं। I'm telling you, if we don't live in joy, we have not learned to live a Christian life. क्योंकि 1/3 परमेश्वर का राज्य क्या है? जॉय। Because 1/3 of God's kingdom is joy, आनंद। अब देखते हैं हम क्या बोलते हैं, डिप्रेस्ड। लोग क्या कहते हैं? डिप्रेस्ड, somebody is pressing them। जब डिप्रेस कहा जाता है तो कोई दबाव डाल रहा है, कोई दबा रहा है, इसलिए एक भार There's a लोगों के weight. सर में, there's a weight on people's head. भार। There's a weight. आज सारा भार निकल रहा है यीशु के नाम। Today all the weights are leaving you in Jesus' name. परमेश्वर पिता इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को आशीष व बरकत दे। सबको जय मसीह की।